students. Today we'll be doing a chapter Landscape of the Soul by Nathalie Trouve-Roy, and it is the fourth chapter in your book Hornbill. This chapter is divided into two parts, so let's read it and enjoy both the parts. So here is the first part, and this part is about Chinese philosophy and Chinese art, right? So let's start. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi who lived in the 8th century. So you see, we are reading about Chinese culture here. चाइना में एक लेजेंड है वू डाउजी के बारे में, एंड वू डाउजी एक पेंटर था जो कि 8th सेंचुरी में रहता था, राइट? तो और ये कहानी काफ़ी फेमस है. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall. So 8th century में वू डाउजी जो कि बहुत फेमस पेंटर एंड फिलोसोफर था, उसने अपनी एक लास्ट पेंटिंग बनाई, दैट इज टैंग एम्परर जुआंगजोंग ने वू डाउजी को ऑर्डर किया कि उसके महल की दीवार पे एक सुंदर सी पेंटिंग बनाई जाए. सो द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड ए स्क्रीन. सो वू डाउजी ने काफ़ी टाइम लिया और उस पेंटिंग को बना लिया और उसको एक पेंटिंग के एक सी स्क्रीन के पीछे छुपा दिया, दैट इज एक शीट के पीछे छुपा दिया. सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि जब वो उस पेंटिंग को फिनिश कर ले सबसे पहले उसको एम्परर ही देख पाए. सो फॉर ए लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन. और जब वो पेंटिंग फिनिश हुई, वू डाउजी एम्परर के पास गया और उसने रिक्वेस्ट की कि सर आप मेरे साथ आइए, आपकी पेंटिंग बन गई है, जरा देखिए कैसी है, अगर आप इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं तो आई विल डू दोज चेंजेस, right? So emperor, you see, went to that room where the painting had been made. Wu Daozi lifted the screen, and the moment the emperor saw the painting, he was wonderstruck. The painting was very beautiful, right? So these things were painted in the painting: forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. So these things had been painted in the picture, in the painting, and they all looked so real. So when the king was looking at all these details, all these beautiful things painted in the painting, Wu Daozi said to the emperor, Sire, sire means respected king, in this cave at the foot of the mountain dwells a spirit. So Wu Daozi ने कहा, डियर एम्परर, आपने ये सब कुछ तो देख लिया, अभी आपका ध्यान इधर नहीं गया है. यहाँ पे देखिए नीचे मैंने एक केव बनाई है, गुफा बनाई है, और इस गुफा के अंदर एक परी रहती है, राइट? एक एंजल रहता है. सो द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स. ये कहकर पेंटर ने अपने हैंड्स को क्लैप किया, एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपनड. और क्वाइट यू सी स्ट्रेंजली इन द पेंटिंग द केव्स एंट्रेंस ओपनड. केव के आगे ना एक डोर लगा हुआ था पेंटिंग के अंदर. तो जब वू डाउजी ने क्लैपिंग की, वो दरवाजा खुल गया. सो द इनसाइड इज स्प्लेंडेड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे. प्लीज लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे. तो वू डाउजी ने कहा, डियर किंग, so the inside of the painting is 1,000 times more beautiful than the painting which you have you see admired so far. So let me take you inside the cave and let me show you how to go inside the cave. So the painter entered the cave, और ये कह के पेंटर उस जो दरवाजा खुला था उसके अंदर चला गया. and you can imagine beta, a painting in the wall, and the painting starts behaving like a four-dimensional phenomenon. The door opens and you go inside the painting. Is it possible?
in ordinary life it is not possible, but it became possible. So Wu Daozi entered that cave which was in the painting, and before the astonished emperor could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. अच्छा, अब राजा भी उस पेंटर के पीछे जब केव में एंटर करने लगा, उससे पहले ही क्या हुआ, केव का दरवाजा बंद हुआ और वो जो पेंटिंग थी वो गायब हो गई, दीवार से पेंटिंग गायब हो गई फ्रॉम द वॉल. नॉट ए ट्रेस ऑफ वू डाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट. और उसके बाद ना ही वू डाउजी मिला, ना ही उसकी पेंटिंग मिली, ना ही उसका पेंटिंग ब्रश मिला. एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड. और इस दुनिया में आर्टिस्ट कभी दोबारा नजर नहीं आया. So such stories played an important part in China's classical education. So you see, the story of Wu Daozi that we just read, these types of story was an integral part of China's classical education. That is, चाइना में जो एजुकेशन दी जाती है बच्चों को या दी जाती थी पास्ट में, ऐसी स्टोरीज उसमें भरपूर थी, बहुत ज़्यादा स्टोरीज थी ऐसी. The books of Confucius and Zhuangzi are full of them. ये जो, kindly note down these two names, Confucius and Zhuangzi. These were famous Chinese philosophers and seers. जो उन्होंने किताबें लिखी, उनकी किताबों में ऐसी कहानियां भरपूर थी और लोग इनको पढ़ते थे. They helped the master to guide his disciple in the right direction. Actually, the purpose of these stories were to help the students and the disciples learn the right direction of life, right? And what is that right direction? I will just explain you. So beyond the anecdote, they are deeply revealing of the spirit in which art was considered. And apart from the, you see, entertainment effect or the imagination that these stories were full of, these stories uh, told us a lot about the spirit of art in China, right? So these, इन कहानियों में सिर्फ एंटरटेनमेंट और इमेजिनेशन ही नहीं था, बल्कि ये कहानियां हमें ये भी बताते हैं कि जो पुरानी चाइनीज फिलॉसफी थी या पुराना चाइनीज आर्ट था वो किस तरीके का था, राइट? सो कंट्रास्ट दिस स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट ए पेंटर who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted. ऐसी ही एक और कहानी है. अब वू डाउजो की कहानी को इस कहानी के साथ कंपेयर करिए. और उस कहानी में क्या था कि एक पेंटर था, उसने एक ड्रैगन बनाया, उसने पूरा ड्रैगन बना लिया, लेकिन वो उस ड्रैगन की आंख नहीं बना रहा था. क्यों नहीं बना रहा था? फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग. वो ये डर सोच रहा था और ये डर भी रहा था कि अगर उसने ड्रैगन की आंख बना दी, ड्रैगन को नजर आना शुरू हो जाएगा और ड्रैगन पेंटिंग से उड़ के चला जाएगा. सो यू सी, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. So ऊपर वाली दो कहानियां, एक वुड हाउसे की, एक और पेंटर की, वो कहता है अब इस दो कहानियों को ऑथर कह रहा है, नेथली ट्रूव रॉय ये कह रहा है कि ये जो ऊपर चाइनीज दो स्टोरीज मैंने आपको सुनाई है, इनको कंपेयर कीजिए मेरे कल्चर की स्टोरीज के साथ. नोट डाउन, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. अब मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं अपने कल्चर की जो कि वेस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट करती है. आपको खुद इन दोनों में डिफरेंस पता लग जाएगा कि जो ईस्टर्न फिलॉसफी एंड आर्ट है वो वेस्टर्न फिलॉसफी एंड आर्ट से कैसे डिफरेंट है. अभी हमें वो कहानी सुनाएगा. सो हियर बेटा, फ्लैंडर्स, the Flemish region of Belgium or Flanders is a Dutch speaking area in the country's north and one of three Belgian regions. The national capital Brussels, considered its own region, lies near Flanders' southern edge. So here you can see entire area in Belgium. So this area is called Flanders. The culture that developed here is known as Flanders. So the author Nathalie Trouve-Roy is from here. So now he will be comparing the Flanders culture with the Chinese culture, right? Here, just let's have a complete knowledge.
Antwerp is a port city and major diamond trade center with a reputation for fashion design. So its Royal Museum of Fine Arts has a large collection of paintings by Flemish masters. So you see, there the painting, the art developed here a lot, but it developed differently from that of China. Now here Nathalie Trouve-Roy will be telling us a story from his own culture and then compare it with the Chinese stories which we have read just now. The stories of Wu Daozi and another painter who would not dry the eye of a dragon. So here is the now Western culture story. In 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Metzges fell in love with a painter's daughter. So वो कहानी सुना रहा हमें कि 15th सेंचुरी में एंटवर्प में मैंने बताया आपको एंटवर्प क्या है, वहीं जो वो फ्लैंडर्स का जो कल्चर है, जो एरिया है, वहाँ पे एक शहर था, वहाँ पे एक लोहार रहता था जिसका नाम था क्विंटन मेट्सिस. लोहार इज पर्सन हु वर्क्स इन आयरन वर्क्स. एक्सक्यूज मी. So that blacksmith fell in love with a painter's daughter, right? So you see कि कहाँ पे लोहार और कहाँ पे पेंटर, means both are not compatible. लोहार और पेंटर की जोड़ी नहीं बन सकती ना. तो लोहार क्विंटन मेट्सिस को, लोहे का काम करने वाले क्विंटन मेट्सिस को पेंटर की बेटी से प्यार हो गया. So the father would not accept his son-in-law in such a profession. So you see, so that fellow Quentin Metzges must have gone to the daughter's father, to the painter, to request him to allow him to get married to his daughter. But the painter refused, did not accept the proposal. So you see, in order to impress the painter, Quentin Metzges did something. शादी करने के लिए ये जरूरी था कि वो उसके पापा को, लड़की के पापा को मना ले. तो उसको मनाने के लिए उसको कुछ डिफरेंट करना था. तो उसने क्या किया, चुपके से एक पेंटिंग सीखी और एक दिन क्या किया उसने, चुपचाप वो लोहार sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel. तो वो क्विंटन मैट्सिस चुपके से पेंटर के स्टूडियो में गया जहाँ वो पेंटिंग्स बनाता था. वो वहाँ था नहीं और वो एक पेंटिंग बना रहा था. उसने जो वो पेंटिंग बना रहा था उसके पैनल पे कुछ बना दिया. क्या बनाया? फ्लाई. फ्लाई इज मक्खी. मक्खी बना दी उसने. With such delicate realism that the master tried to swat it away before he realized what had happened. So you see, अगले दिन जब वो पेंटर अपनी पेंटिंग पूरी करने के लिए अपने स्टूडियो में आया, उसने अपनी पेंटिंग को वहीं से शुरू करना शुरू किया जहां से उसने छोड़ा था. उसने देखा कि उसकी पेंटिंग पे एक मक्खी बैठी है और वो बिल्कुल रियल लग रही थी. तो उसने उस मक्खी को उड़ाने की कोशिश की. तो जब वो मक्खी नहीं उड़ी तो पेंटर को रियलाइज हुआ, अरे ये तो किसी मास्टर बंदे ने मक्खी बनाई है जो बिल्कुल रियल लग रही है. तो जब पता लगा कि ये जो फ्लाई थी क्विंटन मैट्सिस ने बनाई थी, तो वो क्विंटन मैट्सिस से बहुत इम्प्रेस हुआ. उसने उसको अलाउ कर दिया कि वो उसकी बेटी के साथ शादी कर सकता है. मतलब देखिए कि जो वेस्टर्न कल्चर में जो आर्ट है उसका मतलब क्या है, और चाइनीज फिलॉसफी में, ईस्टर्न फिलॉसफी में, चाइनीज आर्ट में आर्ट का मीनिंग क्या है. सो दिस विल कंपेयर इन आवर नेक्स्ट slide. So he married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. So you see, Quentin Metzges जो कि लोहार था, प्यार की वजह से उसने पेंटिंग सीखी और उसने इतनी मेहनत की कि he became a great painter. He not only succeeded in marrying the girl he loved, but later on he became one of the greatest painters in the Western world. So these two stories illustrate what each form of art is trying to achieve. तो ये जो दो तीनों कहानियां हैं, पहली दो एक चाइनीज कहानियां, वू डाउजी वाली और ड्रैगन वाली, और ये दूसरी कहानी पेंटिंग अ फ्लाई वाली, क्विंटन मैट्सिस वाली,
अगर हम इनको कंपेयर करें तो हमें पता लगता है कि दोनों पेंटिंग्स का, दोनों फॉर्म ऑफ आर्ट्स का पर्पस क्या है, राइट? परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप, यूरोप मींस वेस्टर्न कल्चर में जो आर्ट का पर्पस है वो ये है कि पेंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो रियल जो लाइफ है उसकी चीजों को एग्जैक्टली कॉपी कर सके, मतलब ऐसे लगे कि जैसे बिल्कुल रियल बनी है। द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। और जो चाइनीज आर्ट है उसका पर्पस है कि हमें इनर लाइफ के बारे में पता लगे, जो जिंदगी की इंटरनल चीजें हैं ना वो क्या है उनको जानना जो है वो चाइनीज आर्ट का पर्पस है या एम है, या जो एशियन स्पिरिट है उसका एम है। सो इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस ए पेंटिंग and appreciates its outer appearance, but the artist reveals to him the true meaning of his work. So वू डाउजी की पेंटिंग में हमने क्या देखा कि जो पेंटर है उसने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई, और जब एम्परर उस पेंटिंग को एडमायर कर रहा था, उसको अप्रिशिएट कर रहा था, तो जो मास्टर था जिसने बनाई थी वू डाउजी, वो उसको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उसका मीनिंग क्या है, उसका एक्चुअल में पेंटिंग का मीनिंग क्या है, और वो उसको समझाने की कोशिश कर रहा था कि हाउ टू गो द इनसाइड ऑफ द पेंटिंग, व्हाट इज द इंटरनल मीनिंग ऑफ द पेंटिंग। सो once again I am telling you, the purpose of western philosophy and painting is to create a perfect illusionistic likeness of painted things with the real life. But in China or in Asia, the purpose of art is to guide the viewer to know its internal meaning and to go within, not just the outer appearance but the internal essence of the painting and art also. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. So, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो चाइनीज आर्ट है और फिलोसफी है उनका जो प्राइम फोकस है वो है इंटरनल वर्ल्ड। एंड बेटा लेट मी हियर टेल यू, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वर्ल्ड। वी हैव अ फिजिकल वर्ल्ड विच वी कैन सी विद आवर आईज, then we have astral world, then we have spiritual world, then we have metaphysical world. These are all abstract worlds. So all of us know that there is this world that we see, it is just the one dimension. So the world exists in many dimensions beyond the physical dimension. So now let me explain you in Hindi. ये जो हमारा संसार है मेनली हम इसको फिजिकल वर्ल्ड में देख सकते हैं, लेकिन इस संसार के और बड़े रूप हैं जो अदृश्य हैं, उन रूपों को भी देखा जा सकता है ट्रेनिंग के द्वारा। सो ये जो चाइनीज आर्ट है ये हमें हेल्प करता है वो वर्ल्ड्स को देखने में जो फिजिकल आईज से परे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो जो वू डाउजी की स्टोरी थी वो हमें क्या सिखाती है, लेट मी शो द वे द डाओ। सो यू सी मास्टर्स को पता होता है कि उस जो वर्ल्ड हमारी आंखों से परे हैं उनको देखने का रास्ता क्या है, उनको उनको उस रास्ते के बारे में पता ही नहीं, बल्कि वो उस रास्ते से आ जा भी सकते हैं। तो जो एम्परर है वो फिजिकल वर्ल्ड का तो राजा हो सकता है, लेकिन जो इंटरनल वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड बियॉन्ड द सेंसेस है, उस वर्ल्ड का जो किंग है वो फिलोसोफर है, वो सेंट है, और यहाँ वो डाओ जैसे फिलोसफर्स हैं जिनको उस वर्ल्ड के बारे में पता है। सो द वर्ड डाओ मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड। एक्चुअली में नोट डाउन द वर्ड डाओ। डाओ का मतलब है कि रास्ता, राइट, और तरीका। एंड व्हाट इज दैट रास्ता एंड व्हाट इज दैट तरीका? टू नो द मिस्टीरियस वर्किंग ऑफ द यूनिवर्स। आवर यूनिवर्स इज क्वाइट मिस्टीरियस। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता हो कि हमारा वर्ल्ड मिस्टीरियस नहीं है, बट आवर वर्ल्ड इज रियली वेरी वेरी मिस्टीरियस। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस लाइक हाउ डिड द वर्ल्ड कम इनटू ओरिजिन, हाउ डिड द वर्ल्ड ओरिजिनेट, हाउ डिड द you see God make this world, who is God, where is God, what is death, what happens after death.
So there are so many mysteries. So these mysteries are known only to the philosophers, to the masters like Tao, right? So the painting is gone because see here the painting disappearing is symbolic of something, but the artist has reached his goal. So you see, the artists like Tao, they know how to reach their goal, which is beyond any material appearance. So going beyond the material appearance is our goal. दैट इज ये जो हमें मटेरियल वर्ल्ड दिखता है, इसके बियॉन्ड भी एक वर्ल्ड है, इससे परे भी एक वर्ल्ड है, और हमें उस वर्ल्ड के बारे में सिर्फ पता ही नहीं होना चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए कि उस वर्ल्ड में जाना कैसे है। और चाइनीज जो पेंटिंग्स हैं वो इसी तरफ इशारा करती है। सो ए क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू एज वुड ए वेस्टर्न फिगुरेटिव पेंटिंग। सो जो चाइनीज लैंडस्केप है वो वेस्टर्न फिगुरेटिव पेंटिंग से बिल्कुल अलग है। वेस्टर्न फिगुरेटिव पेंटिंग में जो पेंटर है वो चाहता है कि आप उसकी निगाह से देखो, लेकिन जो चाइनीज पेंटर है जिसने वो लैंडस्केप क्रिएट किया है, वो चाहता है कि आप फ्री हो इसको एक्सप्लोर करने के लिए, आप चाहे इसको किसी भी एंगल से देखो। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न पेंटिंग एंड द चाइनीज पेंटिंग। So whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जो यूरोपियन पेंटर है वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप किसी जो पेंटिंग क्रिएट की गई है उसको बिल्कुल उसी एंगल से देखो जिस एंगल से उसने बनाई है, राइट। बट द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट, लेकिन जो चाइनीज पेंटर है वो नहीं चाहता कि आप उसको किसी एक एंगल से देखो, वो चाहता है आप इसको अलग अलग एंगल से देखो। हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन बिकॉज ही through his painting is actually hinting at something that is beyond the physical world one, and you can enter it from any point, or you can look at a Chinese painting from any point of view you like, then travel in it. So he even wants you to get inside the painting and travel in it. So the artist creates a path for your eyes to travel up and down, then back again in a leisurely movement. Leisurely means in a relaxed manner. So the Chinese painter wants you to you see, think whatever you want about his painting, right? So that is the main difference between a Chinese point of view of art and Western point of view of art. So this is even more true in the case of the horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on to the other adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. So you see, चाइनीज पेंटिंग में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल टाइप की एक पेंटिंग भी बनाई जाती है, उसमें ना काफ़ी पार्ट्स होते हैं। अगर हम उन पार्ट्स को जैसे ताश के पत्ते होते हैं हिलाएं, तो उस पर कुछ एक ही पेंटिंग ऐसे बनाई होती है कि अगर हम उसको ताश के पत्तों की तरह अगर अपने अंगूठे से ऊपर नीचे करें तो हमें दिखता है कि वो पेंटिंग हिल रही है। तो मतलब वो पेंटिंग में एक डायमेंशन ऑफ टाइम भी ऐड कर देते हैं, राइट। सो टाइम इज ए ग्रेट डायमेंशन विच मेक्स लाइफ रियल। विदाउट टाइम एवरीथिंग वुड बी पेंटिंग, बट विद टाइम everything becomes alive. So Chinese पेंटिंग में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में पेंटिंग को लाइव भी बनाया जा सकता है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, और वो एक्टिव तभी बनती है जब हम उसको बड़े ध्यान से देखते हैं। दैट इज, जो देखने वाला है वो उसको एक्टिवली देखता है। हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल थ्रू द पेंटिंग, क्योंकि वो पेंटिंग की स्पीड को कम, जो ताश के पत्ते हैं टाइप हैं उनको वो धीरे और फास्ट कर सकता है, और इस तरह वो पेंटिंग में जो टाइम की मूवमेंट है वो स्लो और फास्ट भी हो सकती है, राइट। A participation which is physical as well as mental, और this type of participation physical भी होती है और mental भी होती है। So you see, Chinese painting even has the dimension of time in it, in a special type of painting called horizontal scroll. The Chinese painter does not want you to borrow his eyes. So you see, the Chinese painter does not want to look at the painting from one particular angle. He wants you to enter his mind. So this is what the Chinese painter expects from the viewer. He wants
the viewer to enter the poet's or the painter's mind. So the landscape is an inner one. So you see, I already told you the Chinese painting points at an inner world, the spiritual world. So you see the, and that landscape is actually inside the painter's mind, not in the painting. So the Chinese painter wants the viewer to enter his mind, which is a spiritual and conceptual place, right? Conceptual means existing only in the concept, not in reality. So this concept is expressed as Shan Shui. So you see, this concept, the spiritual concept, in Chinese, this means Shan Shui. Literally, it means mountain water, right? So Shan Shui's meaning is mountain water, which used together represent the word landscape. So Shan Shui means mountain water, and this further means the landscape. More than two elements of an image. These represent two complementary poles reflecting the Taoist view of the universe. So you see, uh, the concept of Shanshui has two elements in it, right? And they complement each other. That is, वो एक दूसरे को पूरक बनाते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, और यही सब कुछ डाउइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स में बताया जाता है. अकॉर्डिंग टू डाओइज्म, द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू elements. One is yin and one is yang, and about it we'll read in the next few lines. So the mountain is yang, reaching vertically towards heaven, stable, warm, and dry in the sun, while the water is yin, horizontal and resting on the earth, fluid, moist, and cool. So you see, Taoism is based on uh, two principles, and one principle according to Taoism is yang, and it is the male principle. Reaching vertically towards heaven, मतलब ये straight होता है, जैसे कि माउंटेन इज सिंबल ऑफ यांग, राइट? स्टेबल है, वार्म है, ड्राई है, ठीक है? और जो वाटर है दैट इज सिंबल ऑफ यिन, एंड यिन इज द फीमेल फोर्स ऑफ द यूनिवर्स. हमारे कल्चर में इसको बोला जाता है शिव एंड शक्ति. शिव इज द मेल प्रिंसिपल in the universe, and Shakti is the female principle of the universe. So the interaction of yin, the receptive feminine aspect of universal energy, and its counterpart yang, active and masculine, is of course a fundamental notion of Taoism. So Taoism के अनुसार ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है, ये दो ताकतों से बना है. फर्स्ट इज yin, राइट, द फीमेल प्रिंसिपल, एंड द सेकंड इज यांग, द मेल प्रिंसिपल. इन दोनों के इंटरेक्शन से ही हमारा पूरा यूनिवर्स बना हुआ है. सो व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट. लेकिन यहाँ पे ऑथर कहता है कि इन दो एलिमेंट्स के अलावा एक थर्ड एलिमेंट भी है, और वो है द मिडल वॉइड, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, एंड दैट थर्ड एलिमेंट इज मिडल वॉइड. मिडल वॉइड मीन्स इन्फिनिट वास्ट एम्प्टीनेस, क्योंकि जो इस आकाश में ही तो मेल एंड फीमेल प्रिंसिपल दोनों काम करते हैं, इस एम्प्टी स्पेस में ही तो ये दोनों काम करते हैं, तभी तो दुनिया बनती है. सो एक्चुअल फिलॉसफी हैज थ्री प्रिंसिपल्स और थ्री एलिमेंट्स, yin, yang, and the third element is middle void. Middle void is that emptiness in which the entire universe exists. So this can be compared with the yogic practice of pranayama. So you see, these three principles can be compared with the yogic practice of pranayama. So in pranayama also we do the three uh, principles. We practice the three things. Breathe in. So this is how meditation is done. Breathe in, long breathing in. Then we retain the breath, that is we hold the breath, and then breathe out. तो ऑथर कहता है कि ये जो डाओइज्म है, इसको हम प्राणायामा के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज प्राणायामा? प्राणायामा इज कंट्रोलिंग ऑफ एनर्जी इनसाइड अस. सो यू सी द एंटायर यूनिवर्स इज वर्किंग बिकॉज ऑफ द
the prime pristine energy flowing through all of us, and this energy can be you see controlled and directed. So when we do that, it is called pranayama. So in pranayama हम क्या करते हैं, लंबे सांस लेते हैं, पहले इनहेल करते हैं, फिर उस हम सांस को रोकते हैं और फिर हम उसको धीरे धीरे बाहर निकाल देते हैं. सो द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स. और ये जो हम जब हम अपना सांस रोकते हैं ना, तो अब हमारे माइंड में एक खालीपन आ जाता है, वॉइड, एम्प्टीनेस आ जाती है. रियल मेडिटेशन उसी में होता है. वंस अगेन बेटा नोट डाउन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम सांस अंदर लेते हैं, फिर हम उस सांस को रोकते हैं, और जब हम सांस को रोकते हैं तो हमारे माइंड के अंदर एक एम्प्टीनेस आ जाती है. तो जो असली मेडिटेशन है वो उस एम्प्टीनेस में होता है, और उसके बाद हम सांस को छोड़ देते हैं. सो द मिडल वॉइड इज इसेंशियल. सो यू सी इन बोथ द फिलोसफीज, इवन इन प्राणायामा एंड इन डाओइज्म, द मिडल वॉइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे डाओइज्म में जो वॉइड में ही यिन एंड यांग फंक्शन करती हैं, उसी तरह प्राणायामा में भी जो मिडल वॉइड है, जब हम सांस रोकते हैं तभी हमारा मेडिटेशन होता है, और मिडल वॉइड बहुत ही जरूरी है. नथिंग कैन हैपन विदाउट इट. सच तो यही है कि मिडल वॉइड के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, और ये बिल्कुल सच है. अभी भी हम क्लास ले रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये सब कुछ किस में हो रहा है, एम्प्टीनेस में हो रहा है, मिडल वॉइड में ही हो रहा है, लेकिन हमारा ध्यान इसकी तरफ नहीं है. जब हम अपना ध्यान इसकी तरफ लेके जाएंगे तब हमें इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी. हेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप. और जो चाइनीज लैंडस्केप्स में एक वाइट स्पेस होती है, अनपेंटेड होती है, वो इसी की तरफ इशारा करती है. दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल. और इसी वॉइड में हम इंसान को अपना जो उसका मेन रोल प्ले करता है उसके बारे में पता चलता है. इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ ही बिकम्स द conduit of communication between both poles of the universe. So you see, human beings are very important. Human beings are an integral part, integral link between heaven and earth. Heaven refers to the invisible universe and earth refers to the visible universe. So the thing that connects, the channel that connects the invisible universe with the visible universe is man. Man is the connection between the visible and the invisible, right? So these visible pole and invisible poles, they are united by a link called human beings. His presence is essential. So that's why human beings presence is very very essential. Human beings के बिना ये universe अधूरा है, even if it is only suggested. Far from being lost or oppressed by the lofty peaks, he is in Francois Cheng's wonderful expression, the eye of the landscape. So you see, according to a philosopher Francois Cheng, man actually is the eye of this landscape called universe. कि अगर हमें visible और invisible universe देखना है, that is possible only through the human eye. So human beings are very very important in all types of universes, whether it's a physical universe or an invisible universe. Hello students, today we'll be doing the second part of the chapter Landscape of the Soul, and this part is titled Getting Inside Outsider Art. So let's start it. So when French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in the 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest. So बेटा ये चैप्टर का दूसरा पार्ट है, इसका टाइटल है गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट. नोट डाउन द टर्म आउटसाइडर आर्ट मीन्स it's a new form of art. So you see, we have various types of arts, and outsider art is the modern form of the art, right? And this was started by a French painter named Jean Dubuffet. So ये एक नई तरह का आर्ट है. आप इसके बारे में अगली कुछ लाइनों में आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि ये
किस तरह का आर्ट है। तो ये आर्ट फॉर्म एक फ्रांस के पेंटर जॉन डबूफे ने स्टार्ट की थी और प्रमोट की थी, और उसने इसका नाम दिया था आर्ट ब्रट। नोट डाउन द वर्ड आर्ट ब्रट। एंड उसको इसने 1940 में स्टार्ट किया था। और 1940 में जब ये उसने आर्ट स्टार्ट किया तो ये बिल्कुल पॉपुलर नहीं था, और इस आर्ट फॉर्म को कोई भी कर सकता है। नोट डाउन, सो दिस इज ए फॉर्म ऑफ आर्ट विच एनी अनट्रेन्ड विजनरी कैन टेक अप। सो 1940s में भी अनट्रेन्ड कुछ लोग थे, पर उनके पास बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज थे आर्ट के लिए, और उन्होंने इसको स्टार्ट किया। और 1940 में ये बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते थे। सो बेटा नोट डाउन, यू हैव टू टर्म्स नाउ, आर्ट ब्रट दिस वन एंड आउटसाइडर आर्ट। इन दोनों का मतलब एक ही है। अब आपको आगे चल के पता चलेगा कि आउटसाइडर आर्ट और आर्ट ब्रट का मतलब क्या है। So from its almost veiled beginnings, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. हाँ, 1940 से लेके अब तक, दैट इज जब तक ये चैप्टर लिखा गया और इवन अब तक, दैट इज 2021 तक, ये आर्ट फॉर्म बहुत ही पॉपुलर हो गई है। काइंडली नोट डाउन, 1940 में ये स्टार्ट हुई थी, उन लोगों ने स्टार्ट की थी जिन्होंने के पास कोई पहले पेंटिंग की ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उनके पास आइडियाज थे तो उन्होंने इसको स्टार्ट किया। तो पहले पहले तो ये कम पॉपुलर थी। वेल्ड बिगनिंग मींस इट वाज नॉट वेरी मच पॉपुलर, ओनली फ्यू पीपल न्यू इट। लेकिन स्लोली एंड स्लोली आर्ट ब्रट बहुत ही पॉपुलर हो गया इंटरनेशनली, और आजकल के मॉडर्न टाइम में तो ये बहुत ही पॉपुलर है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। आजकल आपने सुना होगा स्प्रे पेंटिंग, मतलब कुछ लोग स्प्रे कैन लेके पेंटिंग कर देते हैं दीवारों पे। सो दैट इज ए फॉर्म ऑफ आउटसाइडर आर्ट, राइट। सो इस टाइप के आर्ट के लिए आपको कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे टाइप के आर्ट के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक बहुत ही अच्छे पेंटर बनना है तो आपको किसी पेंटिंग गुरु के पास जाना पड़ेगा, अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उससे पेंटिंग के जो कन्वेंशंस हैं उनको सीखना पड़ेगा। लेकिन आउटसाइडर आर्ट में यू डोंट नीड to have any training. So if you have any idea related to art in your mind, you can express it using any modern methodology. For example, आप garbage से art create कर सकते हो, आप e-waste से art create कर सकते हो, या आप किसी लोहे की पुरानी फेंकी हुई चीजें जिसको स्क्रैप बोलते हैं उससे आर्ट क्रिएट कर सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड आउटसाइडर आर्ट। So here in the picture you can see a creation of an outsider art, right? So this is art brut. So if you look at other paintings, you will find them very original, like real life characters, but this form is totally different, right? So this is an example of art brut. So here is another example of art brut. So you see, somebody using this structure has created a creation of art. So this can also be compared to an outsider art creation. So let's move ahead. So this genre is described as the art of those who have no right to be artists, as they have received no formal training yet show talent and artistic insight. So you see, this genre means this type of art can be described as the art of those, मतलब इस तरह के आर्ट को हम कह सकते हैं कि ये उनका आर्ट फॉर्म है जिनके पास आर्टिस्ट बनने का कोई अधिकार नहीं है, राइट। व्हाई? बिकॉज दे हैव नॉट रिसीव्ड एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, कि उन्होंने कोई पेंटर से या किसी आर्टिस्ट से ट्रेनिंग नहीं ली है। उसके बावजूद येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, उसके बावजूद उनमें एक कला है कि वो कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों का है ये आर्ट। देयर वर्क्स आर स्टिमुलेटिंग कंट्रास्ट टू ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग। और जो वो बनाते हैं, मतलब जो वो आर्ट की क्रिएशंस बनाते हैं, जो वो कला के रूप में कुछ नया बनाते हैं, वो बिल्कुल हटके होता है जो दूसरे आर्टिस्ट होते हैं उनकी क्रिएशन से।
मेन स्ट्रीम मीन जो आम तरह के आर्टिस्ट हैं, जो यूजुअली आर्टिस्ट होते हैं, उनकी क्रिएशन से जो आर्ट ब्रट की क्रिएशंस हैं वो बिल्कुल अलग होती है। आगे चल के आप इसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि आप को मैं उस इंसान के बारे में बताऊंगा जिसने इंडिया में, पंजाब में कुछ क्रिएट किया है आउटसाइडर आर्ट फॉर्म, जो कि बहुत ही पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में। So here you can have a look at that person's creation. So around the time Dubuffet was propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise. So बेटा जब 1940 और उसके बाद डुबुफे जिसने कि इस आर्ट फॉर्म को प्रमोट किया, वो इसको एक्सप्लेन कर रहा था पूरी दुनिया को और इसकी प्रमोशन कर रहा था पूरी दुनिया में, इंडिया में एक ऐसा ही आर्ट ब्रट आर्टिस्ट एक स्वर्ग बना रहा था अपने आइडिया से। और उस जीनियस ने, उस आर्टिस्ट ने, जिसने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली थी, राइट, और उसने एक बहुत ही नायाब चीज बना दी पंजाब में, राइट। Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh. So आपने चंडीगढ़ में रॉक गार्डन तो सबने देखा ही होगा। तो वो जो रॉक गार्डन है वो एक जीनियस जिसका नाम नेकचंद है, उन्होंने बनाया है, और वो बहुत ही सुंदर है। और वो जो उन्होंने रॉक गार्डन बनाया है वो किस चीज से बनाया है? पुराने पत्थरों से, टूटी फूटी हुई चीजों से उनको रिसाइकल करके उन्होंने एक नायाब चीज बना दी है चंडीगढ़ में, जिसको कि पूरी दुनिया में लोग रॉक गार्डन के नाम से जाते हैं, जो कि चंडीगढ़ में है। आप सब ने भी देखा होगा रॉक गार्डन। तो रॉक गार्डन इज नथिंग बट आर्ट ब्रट, एन एक्सप्रेशन ऑफ आउटसाइडर्स आर्ट। So its 80-year-old creator director Nekchand is now hailed as India's biggest contributor to outsider art. So you see, इस रॉक गार्डन को बनाने वाले हैं नेकचंद। जब चैप्टर लिखा गया तब उनकी एज थी 80 years, और वो इसके क्रिएटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और उनको इंडिया का सबसे बड़ा आउटसाइडर आर्टिस्ट माना जाता है। उन्होंने आउटसाइडर आर्ट को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। सो द 50th इशू स्प्रिंग 2005, काइंडली नोट डाउन, ये चैप्टर 2005 में ही लिखा गया, तो आज से 16 साल पहले। सो इफ नेकचंद इज अलाइव, हिज एज इज अप्रोक्सीमेटली 95 और 96 years, राइट। सो 2005 के स्प्रिंग इशू में रॉ विजन, ए यूके बेस्ड मैगजीन, जो कि एक यूके बेस्ड मैगजीन है, जो मैगजीन ये किसके बारे में है? रॉ आर्ट के बारे में है, आर्ट ब्रट के बारे में है। उस मैगजीन में नेकचंद जी के ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया। सी, सारी मैगजीन का जो इवन फेस कवर पेज था उस पे भी नेकचंद जी की फोटो थी, नेकचंद जी की ये वाली फोटो थी। सो फीचर्स नेकचंद and his rock garden sculpture women by the waterfall, ये वाली पिक्चर उस मैगजीन के कवर पेज पे थी, और उस मैगजीन के एडिशन में उनकी बहुत प्रेज की गई नेकचंद की, राइट। इट्स एनिवर्सरी इश्यूज कवर, राइट। सो उस मैगजीन में, जो कि वो सेलिब्रेट कर रही थी अपनी एनिवर्सरी, तो उन्होंने नेकचंद जी के ऊपर वो सारी मैगजीन उस इशू में सारा नेकचंद जी को कवर किया, उनके बारे में, उनके रॉक गार्डन के बारे में। और उस मैगजीन में काफ़ी कुछ नेकचंद जी के बारे में लिखा हुआ था, और उनकी एक पिक्चर वो मैगजीन के कवर पेज पे थी, और मैगजीन के अंदर रॉक गार्डन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ था। एंड दिस मैगजीन वॉज पब्लिश्ड इन यूके, यूनाइटेड किंगडम, एंड थ्रू आउट यूरोप। So the notion of art brut or raw art was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences. So जो इस फॉर्म के बारे में जो आइडियाज़ थे, जो थॉट्स थी, जो विचार थे, वो काफ़ी अनप्रिपेयर्ड थे, मतलब रॉ
स्टेट में थे, रॉ मीन्स उनको शेप नहीं मिली थी, लोगों के पास आइडियाज तो बहुत थे, राइट। और उनके ऊपर किस कल्चर की इन्फ्लुएंस थी, मतलब कौन से लोग आर्ट ब्रट को फॉलो करते हैं, और क्या चीज है जो उनको उत्साहित करती है कि वो इस फॉर्म ऑफ आर्ट में क्रिएशंस करें। सो ये अभी किसी को नहीं पता था, ठीक है, ना ही पता है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टिन टू ए सिंक टू ए ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट। सो इस तरह के आर्टिस्ट के लिए कुछ भी कला हो सकती है। मतलब जो आर्ट ब्रट के आर्टिस्ट हैं वो किसी भी चीज से कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि टिन से, टिन मतलब जो टीन की चादर होती है, सिंक से, सिंक मीन जो वॉश बेसिन है जिसमें हम हाथ धोते हैं, अगर वो टूट गया है उससे भी कुछ बना सकते हैं, और कोई टूटी हुई कार, पुरानी कार से वो कुछ बना सकते हैं। तो कुछ भी यूज करके इस आर्ट की क्रिएशन बनाई जा सकती है। सो समथिंग नेकचंद हैज टेकन टू डिजिंग हाइट्स, और नेकचंद ने इस फील्ड में वो काम कर दिखाया है जो आज तक किसी ने नहीं कर पाया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये आर्ट से भी बहुत कुछ क्रिएट किया जा सकता है, और उनकी वजह से, नेकचंद की वजह से ये आर्ट वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया है। पहले लोग इसको अच्छा नहीं मानते थे, वो समझते थे कि जो आर्ट इस आर्ट को फॉलो करते हैं वो सैटन के फॉलोअर्स हैं। सैटन मीन्स ऑपोजिट ऑफ गॉड, मतलब वो बुराई के फॉलोअर्स हैं। वो ये मानते थे। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, आर्ट ब्रट वर्सेस सैटन, SATAN। So recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream, the Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of a European exposition of his works. So you see, सिर्फ इंडिया में ही नेकचंद जी को ऑनर नहीं किया गया, पूरे वर्ल्ड में ऑनर किया गया। सो जो स्विस कमीशन है यूनेस्को में, उन्होंने डिसाइड किया कि वो नेकचंद जी की जो क्रिएशन है उसको सेलिब्रेट करेंगे और ऑनर करेंगे, पूरे यूरोप में उनके काम की एग्जीबिशंस लगाकर, और वो दुनिया को ये बताएंगे कि अगर एक इंसान अपने सपने को सच करने की कसम खा लेता है तो वो कितनी सुंदर चीजें क्रिएट कर सकता है। सो नेकचंद जी को ऑनर करने के लिए और उनको दुनिया में पॉपुलर बनाने के लिए स्विस कमीशन ने, दैट इज स्विट्जरलैंड ने, ये डिसाइड किया कि पूरे यूरोप में उनके काम की एग्जीबिशंस लगाई जाएंगी। So the 5-month interactive show Realm of Nekchand beginning October will be held at leading museums in Switzerland, Belgium, France and Italy. So जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो स्विस कमीशन इन यूनेस्को honored Nekchand by holding exhibitions of his work throughout Europe. So they started it by holding the exhibitions first of all in the museums in Switzerland. सबसे पहले उन्होंने स्विट्जरलैंड में के म्यूजियम में उनकी काम की एग्जीबिशन लगाई, फिर बेल्जियम में, फिर फ्रांस में और फिर इटली में। सो द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माय क्रिएशन, नेकचंद सेज। और जब नेकचंद जी से उनके बारे में पूछा जाता है कि आपको कैसा लगता है कि आप पूरे वर्ल्ड में इतने फेमस हो गए हो, आपने जो ये गार्डन बनाया है इसकी वजह से, सो नेकचंद जी का जवाब होता है कि मैं जो इतना फेमस हो गया हूँ उससे मेरे को इतनी खुशी नहीं है। मेरे को खुशी तब मिलती है जब मैं रॉक गार्डन में जाता हूँ, लोगों से जो वहाँ देखने आए होते हैं उनसे बात करता हूँ, और वो मेरे को बताते हैं कि सर आपका ये जो रॉक गार्डन देख के हमें बड़ी खुशी मिलती है। तो नेकचंद जी कहते हैं कि उनकी खुशी देख के मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। सो बेटा द चैप्टर इज ओवर। सो दिस आर्टिकल वॉज फ्रॉम ए न्यूज़ पेपर हिंदुस्तान टाइम्स, written by Brinda Suri, and note down it was written on 28th August 2005, that is approximately 16 years ago. So that's it. Thank you very much.